Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. In today's video, I will discuss with you about senior editors interview questions asked by FPSC panel. Viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीनियर एडिटर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल की तरफ से डिफरेंट कैंडिडेट से पूछे गए सवालात हैं। सो कंप्लीट वीडियो उन क्वेश्चंस के ऊपर होने जा रही है। Before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic. So let's get started. Question number first. Purpose of accounting. Viewers, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल की तरफ से और उन्होंने पूछा था कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। The primary role of accounting is to maintain a systematic, accurate and complete record of all financial transactions of a business. The purpose of accounting is to accumulate and report on financial information about the performance, financial position and cash flows of a business. This information is then used to reach decisions about how to manage the business or invest in it or lend money to it. This information is accumulated in accounting records with accounting transactions, which are recorded either through such standardized businesses transactions as customer invoicing or supplier invoices, or through more specialized transactions known as journal entries. Viewers, after reading the definition, we can understand that the purpose of accounting is the primary role of accounting is to maintain a systematic, accurate, and complete record of all financial transactions of a business. Viewers, जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है और बेसिक पर्पस जो है अकाउंटिंग का मेंटेन करना सिस्टमेटिक, एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड जो है तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। फॉर द पर्पस of accounting is to accumulate and report the financial information about the performances और जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का रिकॉर्ड को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जा सके, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोज ऑफ अ बिजनेस। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज टू रीच डिसीजंस अबाउट हाउ टू मैनेज द बिजनेसेस और इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिसीजन लिए जा सकें कि कैसे जो है बिजनेस को मैनेज करना है और इन्वेस्ट इन इट और बिजनेस में किस तरह से इन्वेस्ट करना है या मनी लैंड करनी है तो कैसे करनी है। तमाम के तमाम ये डिसीजन जो होते हैं वो हमें अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है वो हमें बताता है। उसके साथ साथ दिस इंफॉर्मेशन इज accumulated इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस which are recorded either through such standardized business transactions as customer invoicing or supplier invoices or through more specialized transactions known as journal entries. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जो है जनरल एंट्रीज में, लेजर में, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, ताकि हमें जो है फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना विच इज़ बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना ताकि बिजनेस की हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है पता चल सके और इसकी बेस के ऊपर जो है डिफरेंट डिसीजंस लिए जा सकें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और लेंडिंग डिसीजंस को लिया जा सके। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एफपीएससी पैनल की जानिब से सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू में इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process. Internal auditing might achieve this goal by providing insight and recommendations based on analysis and assessments of data and business processes. Whereas internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. Whereas इंटरनल ऑडिट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटरनल ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरनल ऑडिट सेक्शन बनाया होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं इंटरनल ऑडिट में वो जो काम कर रहे होते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर वो कंडक्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन का
एक्चुअली वो जो एम्प्लॉइज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करता चलूँ कि एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। व्यूअर्स, इंटरनल ऑडिट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जो है एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी जाती है इस पर्पज़ के लिए कि वो इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करें। और एक्सटर्नल ऑडिट ये है कि आउटसाइडर्स जो होते हैं ऑडिटर्स, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिपेंडेंटली ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि एम्प्लॉयज़ नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। लेकिन जो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑडिट सेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं, इंटरनल ऑडिट में चेक कर रहे होते हैं स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि एवरीथिंग इज़ डन एज इट शुड बी, कि तमाम चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल एंट्रीज रिकॉर्ड की जा रही हैं वो वैसा ही है जैसे उनको होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वैल्यू ऐड करते हैं, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को, उसको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो अकम्प्लिश कर सके ऑब्जेक्टिव्स को, ब्रिंगिंग सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सके। रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस को, इंटरनल ऑडिटिंग माइट अचीव दिस गोल बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट एंड रिकमेंडेशंस। और जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो अपने जो है इनसाइट व्यूज देते हैं तमाम चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करने के बाद, उसके साथ साथ जो है रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस को देखने के बाद जो है एक अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि किस तरह से जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को एक अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सकती है और मोर इफेक्टिवनेस कैसे सिस्टम को बनाया जा सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल ये तमाम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड पब्लिक अकाउंटिंग, जो पूछा गया था एफपीएससी इंटरव्यू में। Government accounting is maintained by the government offices to know the position of public fund, but commercial accounting is maintained by business organizations to know the profit or loss and the financial position of the businesses. The main motive of public sector organization is to engage in activities that serve the general public. The main motive of the private sector is to earn profits from their business operations. The capital for public sector undertakings comes from tax collections, excise and other duties, bonds, treasury bills, etc. Whereas after reading the paragraph, we can understand that government accounting or public accounting is maintained by the government offices to know the position of public fund, के public accounting या government accounting maintain की जाती है government offices से, जिससे वो के position पता कर सकें public fund की। On the other hand, commercial accounting is maintained by business organizations to know the profit or loss। और जो commercial accounting होती है वो इसलिए मेंटेन की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर किया जा सके, फाइनेंशियल पोजीशंस को देखा जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए, पोजीशंस को देखते हुए डिसीजन लिए जा सके। मेन मोटिव जो होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का, टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट सर्व द जनरल पब्लिक। और जो पब्लिक अकाउंटिंग का मेन मोटिव ये होता है कि पब्लिक फंड को फुली यूटिलाइज करना, उनका वेस्टेज ना हो, उसके साथ साथ उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए जहाँ पर जो है जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो। और मेन मोटिव जो प्राइवेट सेक्टर का होता है वो अर्न प्रॉफिट होता है फ्रॉम देयर बिजनेस ऑपरेशंस। द कैपिटल फॉर पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का जो कैपिटल होता है वो आता है टैक्सेस कलेक्शन से, एक्साइज से, अदर ड्यूटीज से, बॉन्ड से, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा से। सो ये था डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड पब्लिक अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर ऑडिटर्स इंटरव्यू में कि who are the end users of financial statements, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड यूजर्स कौन है। प्राइमरी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स एंड द गवर्नमेंट विच इज स्पेसिफिक फ्रॉम एन एक्सटर्नल यूजर्स। व्यूअर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स बताने थे कि कौन होते हैं। इसमें जो है मैनेजमेंट और कंपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, ऑफ कोर्स कंपिटिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, लेंडर्स होते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर आपने बारो करनी है मनी को तो बैंक इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसने आपको जो है लोन देना है तो वो स्टडी करके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लोन देते हैं। तो तमाम के तमाम एंड यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ जो है कंपिटिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं और लेंडर्स होते हैं। नेक्स्ट जो थी व्हाट इज़ फेयर वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा गया था एफपीएससी इंटरव्यू में सीनियर ऑडिटर के। फेयर वैल्यू इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग योर बिजनेस लायबिलिटीज एंड एसेट्स
at their current market value. In other words, fair value is the amount that an asset could be sold for or that a liability could be settled for. That's fair to both buyer and seller. Fair value refers to the actual value of an asset, a product, stock, or security that is agreed upon by both the seller and the buyer. Fair value वो वैल्यू होती है कि उस वैल्यू को हम रेफर कर सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू होती है एक एसेट की, प्रोडक्ट की, स्टॉक की, सिक्योरिटी की, जहाँ पर जो है बायर और सेलर दोनों एग्रीड होते हैं कि एक प्राइस के ऊपर। दैट इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग में जो रेफर किया जाता है वो प्रैक्टिस है कि मयरिंग योर बिजनेस लायबिलिटीज एंड एसेट्स एट देयर करंट मार्केट वैल्यू, जहाँ पर जो है फेयर वैल्यू इज द अमाउंट दैट एन एसेट कुड बी सोल्ड। और फेयर वैल्यू में जिसमें एक एसेट को कुड बी सोल्ड किया जा सकता है या तो जो है लायबिलिटी को सेटल डाउन किया जा सकता है। सो दैट इज फेयर वैल्यू वेयर, जिसमें बोथ बायर्स एंड जो है सेलर जो है वो एग्रीड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स पूछा गया था जो एफपीएससी के पैनल की तरफ से, वो था एक्चुअरी स्टडीज के बारे में। ओवरव्यू: actuary assess, evaluate and manage the financial risk faced by individuals, organizations and governments to plan effectively for the future. The risks assessed by actuaries can include illness, disability, and death, the effects of natural disasters, and major economic or social change. Viewers, एक्चुअल स्टडीज में एक ओवरव्यू करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मैनेज करते हैं फाइनेंशियल रिस्क को जो फेस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट्स, और प्लान करते हैं इफेक्टिवली ताकि फ्यूचर में कैसे जो है रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। ऑफ कोर्स रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को समहाउ मैनेज कर सकते हैं या इसको डिक्रीज कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो असेस करते हैं इस एक्चुअल स्टडीज़ में कि जो इंक्लूड करती है इलनेस, डिसेबिलिटी, डेथ, या इसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, मेजर इकोनॉमिक और सोशल चेंज। तो इनमें जो है इस चीज़ का एनालिसिस करना, फाइनेंशियल रिस्क बेस्ड, और उसके साथ साथ इनको इफेक्टिवली प्लान बनाना ताकि फ्यूचर में जो है कम से कम मिनिमाइज तो कर सकें रिस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माउंटेन्स इन पाकिस्तान, एफपीएससी पैनल की तरफ से। Pakistan is home to 108 peaks above 7,000 meters and 4,555 above 6,000 meters. Karakoram, including the world's second highest peak, K2, 8,611 meters or 28,251 feet. Himalayas highest peak in Pakistan is Nanga Parbat, 8,126 meters, 26,660 feet. Hindu Kush highest peak in Whereas Kashmir, 7,690 meters, 25,230 feet. Whereas माउंटेन्स इन पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो है सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है विच इज़ नोन एज K2। और इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है कौन कौन सी माउंटेन्स हैं इन पाकिस्तान में, और उसके वर्ल्ड रैंक वाइज स्टडी कर लेते हैं। और रैंक जो है पाकिस्तान में वर्ल्ड में जो है सेकंड नंबर पे है, और पाकिस्तान में जो है फर्स्ट नंबर पे है। नेम है K2 माउंटेन, इसकी हाइट है 8,611 और लोकेशन इसकी है कराकोरम। नंबर 9 पे वर्ल्ड लोकेशन पे है, और पाकिस्तान में सेकंड पे है नंगा पर्वत 8,126 के साथ हिमालयाज में। इसी तरह 11 में वर्ल्ड में है और पाकिस्तान में थर्ड पे है, कराकोरम रेंज में है व्यूअर्स। इसी तरह जो है ब्रॉड वीक है और डिफरेंट जो है ये लिस्ट है 4 से 5 की माउंटेन्स इन पाकिस्तान, ये आपके सामने हैं। नेक्स्ट जो है इन विच ईयर USSR dissolved, ये क्वेश्चन पूछा गया था। The dissolution of the Soviet Union was the process of internal disintegration within the Soviet Union USSR which resulted in the end of the country's and its federal government's existence as a sovereign state, thereby resulting in its constituted republics gaining full independence on 26 December 1991। Years यूएसएसआर या सोवियत यूनियन को जो है इस प्रोसेस को डिसॉल्व हुआ था सोवियत यूनियन 1991 26 दिसंबर को, तो ये डेट पूछी गई थी। नेक्स्ट जो व्यूअर्स पूछे गए थे कैपिटल्स, और जीके में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैपिटल्स पूछे जाते हैं। और कैपिटल्स में व्यूअर्स एक कैंडिडेट से कम 8 10 15 भी कंट्रीज के कैपिटल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है जैसे 7 कंट्रीज के कैपिटल पूछे गए थे, तो कैपिटल्स के ऊपर आपने प्रॉपर स्टडी करनी है, इसके जो ऊपर है ओवरव्यू लेना है कैपिटल और करेंसीज का, इसको आपने देखना है ध्यान के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हुए। श्रीलंका का जो कैपिटल पूछा गया था विच इज़ कोलंबो, बांग्लादेश का ऑफ कोर्स ढाका, नॉर्वे का ओस्लो, म्यांमार का जो है नेपाइतो, उसके साथ साथ फिनलैंड का हेलेंसिकी, पुर्तगाल का लिस्बन, और फ्रांस का जो पूछा गया था पेरिस। तो ये कैपिटल्स पूछे गए थे व्यूअर्स
क्वेश्चंस में इन 7 कंट्रीज के कैपिटल्स थे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो आज की, जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एफपीएससी पैनल की तरफ से सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू में। होप्स हो के इस वीडियो में आपको जो है काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी और काफ़ी क्वेश्चन से रिलेटेड नो हो गई होगी। व्यूअर्स, अगर इस वीडियो ने आपके अंडरस्टैंडिंग में इजाफा किया है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ किया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह, अंटिल नेक्स्ट लेक्चर।